नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। करीमनगर की मुबैना मुतनाज़ा तकरीर मुल्क भर में मौज़ूए बहस बन जाने के बाद कायद मजलिस मकराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए ऐसी किसी तकरीर की पुरजोर तरदीद कर दी जो कि अहानत आमेज़ या गैर कानूनी हो। अपने लेटरहेड पर बयान जारी करते हुए अकबर अवैसी ने कहा कि उन्होंने किसी फ़िरक़े के जज्बात मजरू नहीं किए, लेकिन बाद मफाद परस्त अफराद सियासी मकसद बरारी के लिए अपने अल्फाज शामिल करते हुए उसकी गलत तावील पेश कर रहे हैं, जिससे उनकी बदनीयती का इज़हार होता है। नीज़ इस मसले को पुलिस से रुजू करते हुए उन्हें गुमराह कर रहे हैं। अकबर अवैसी ने जोर देकर कहा कि उनकी तकरीर ना तो जुर्म की तारीफ में आती है और ना ही दस्तूरी गुंजाइश के खिलाफ। उन्होंने जो कुछ कहा वो दस्तूर के दायरे कार में ही कहा है। ABVP के कारकुनों ने मेडचल में बिना किसी मंजूरी के विज्ञान पब्लिक स्कूल की इमारत की तामीर के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। ABVP लीडर नरेश ने बताया कि कोंडापुर में भी विज्ञान कॉलेज का इंतजामिया बगैर किसी मंजूरी के एक कॉलेज चला रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद बताया कि कॉलेज में दरकार सहूलतें तक फराहम नहीं की गई हैं। हादसे की सूरत में बच्चों के लिए बचने के लिए जो दरकार शराइत होते हैं उसकी भी तकमील नहीं की गई। कॉलेज के इंतजामिया ने इसी दौरान पुलिस को तलब करते हुए पुरअमन धरने को बर्खास्त करने की कोशिश की। మేడ్చల్ జోన్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు విజ్ఞాన్ జూనియర్ కళాశాల స్కూల్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్కూల్ లోపల ఉన్నటువంటి విజ్ఞాన్ జూనియర్ కళాశాలలో అక్రమంగా నడుస్తున్నటువంటి జూనియర్ కాలేజీని ఈరోజు వెంటనే ఎత్తివేయాలని విద్యార్థి పరిషత్ డిమాండ్ చేస్తూ ఈ యొక్క యాజమాన్యానికి వచ్చి మీరు ఎటువంటి పర్మిషన్ లేకుండా ఎటువంటి ఏవైతే ఫైర్ సేఫ్టీ మినిమం మెజర్స్ లేకుండా ఈరోజు కాలేజీ నడుపుతా ఉన్నారని ప్రశ్నించినప్పుడు విద్యార్థి పరిషత్ ఒకటే చెప్పింది, ఈరోజు మీరు అక్రమంగా ఏదైతే కొండాపూర్ నుంచి క్యాంపస్ని మినిమం పర్మిషన్ లేకుండా ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేశారో ఈ రకంగా చేస్తే పిల్లలకు ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మినిమం వాటర్ ఫెసిలిటీస్ లేవు, ఫైర్ సేఫ్టీ లేదు. అదేవిధంగా హాస్టల్కి వసతి గృహానికి పర్మిషన్ లేనప్పటికి కూడా మినిమం సేఫ్టీ లేకుండా ఏదైతే అన్క్లీనినెస్ వాతావరణంలో ఏదైతే ఫుడ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుందో పిల్లలు దీనివల్ల చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. ఏదైతే విద్యార్థులు ఉన్నారో వాళ్ళని ఎంబడే కూడా DIO గారికి కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ రకంగా ABVP ఏదైతే ఉందో అక్రమంగా ఏదైతే జూనియర్ కళాశాల ఇక్కడ కొనసాగుతుందో దీన్ని వెంబడే కూడా దీనిపైన చర్యలు తీసుకోవాలి. మేడ్చల్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి DIO గారు భాస్కర్ గారు వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చి ఈ యొక్క యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకొని ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ని సీజ్ చేయాలని విద్యార్థి పరిషత్ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. అదే రకంగా శాంతియుతంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేడ్చల్ జోన్లో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలతో ధర్నా నిర్వహిస్తున్నప్పుడు ఈ రకంగా పోలీసులతో దౌర్జన్యంగా పోలీసు బందోబస్తుతో కాలేజీ నడుపుకోవాలని చూస్తున్నారు. ఏదైతే విద్యార్థులు ఇన్స్టిట్యూషన్లు చదువులకి నిలయాలు ఉన్నప్పుడు ఏదైతే DIO గారు రావాల్సినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్లో పోలీసులు రావడాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా మేము ప్రశ్నించినప్పుడు మా కార్యకర్తని నెట్టడం జరిగింది. ఈ యొక్క వాగ్వాదంలో కార్యకర్తలకు కూడా బాగా ఇబ్బంది జరిగింది, కార్యకర్తలకు కూడా గాయాలు పాలైనారు. కాబట్టి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, ఏదైతే అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఉన్నదో మేడ్చల్ జిల్లాలో ఈ రకంగా ఏవైతే అక్రమంగా జూనియర్ కళాశాలలు ఉన్నాయో విజ్ఞాన్ కానివ్వండి ఇంకే కాలేజ్ కానివ్వండి ఖచ్చితంగా ABVP ఆధ్వర్యంలో చర్యలు తీసుకోకపోతే రానున్న రోజుల్లో మేడ్చల్ జిల్లాలో DIOకి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నాం. మేము ABVP ఆధ్వర్యంలో మీడియా ద్వారా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. DIO గారికి అనేక సార్లు కంప్లైంట్ చేసినప్పటికీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చర్యలు తీసుకోలేరు. అంటే ఈ రకంగా మీకు ఈ యొక్క యాజమాన్యంతో విజ్ఞాన్ యాజమాన్యంతో ఏమైనా షేర్స్ ఉన్నాయా అని ఈరోజు DIO గారిని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఎంబడే మేడ్చల్లో ఉన్నటువంటి విజ్ఞాన్ జూనియర్ కాలేజ్ ఏదైతే అక్రమంగా కొనసాగుతుందో దానిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని విద్యార్థి పరిషత్ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. లేని పక్షంలో రానున్న రోజుల్లో తీవ్రంగా ఉద్యమిస్తామని తెలుపుతున్నాం. अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।
तेलुगु फिल्मों की उभरती हुई अदाकारा समीरा खान ने सिल्क कॉटन टेक्सटाइल नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में मंगलगिरी, पोचमपल्ली, राजस्थानी और बंगाली साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन फरोख्त के लिए रखा गया है। मैनेजर अकबर अली ने खैर मकदम किया। ग्रैंड स्वागत फंक्शन हॉल में आप सभी के लिए यहाँ पर एग्जीबिशन ओपनिंग किया गया है। 26 जुलाई टू 4 अगस्त तक आप सभी के लिए यहाँ पर रहेगा। टाइमिंग बहुत ही आप सभी के लिए रखा गया है 10:30 to 8:30। तो आइएगा जरूर ग्रैंड स्वागत फंक्शन हॉल। समीरा खान, आई एम मॉडल एंड टीवी एंकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी के लिए एग्जीबिशन ओपनिंग किया गया है जिसमें आप सभी के लिए बहुत सारे वैरायटीज़ के साड़ी से, सूट से, बैंगल से, ज्वेलरी से, सब टाइप्स के आपको ज्वेलरीज मिलेंगे यहाँ पर। बस आपको यहाँ पर आना है ग्रैंड स्वागत होटल नियर कोतापेट। तो आइएगा ज़रूर यहाँ पर ग्रैंड स्वागत होटल में, क्योंकि आप सभी के लिए हमने हर चीज़ का इंतज़ाम किया है। यहाँ पर साड़ी से, सूट से एंड छोटे बेबीज़ के लिए भी लहंगा जैकेट्स भी है और ज्वेलरी से और बैंगल से, बहुत हर एक टाइप की ज्वेलरी से आप सभी के लिए। तो आप सभी यहाँ पर आ सकते हैं ग्रैंड स्वागत होटल में। కొత్తపేటలోని స్వాగత్ ఫంక్షన్ హాల్లో మీకు ప్రతి సంవత్సరం ఆషాఢ మాసంలో మేము పెట్టే విధంగా సిల్క్ అండ్ కాటన్ ఎక్స్పో ఈ సంవత్సరం కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. దీంట్లో 12 రాష్ట్రాల నుంచి మా కళాకారులు వివిధ రకాల కళా ఉత్పత్తులచే పెట్టడం జరుగుతుంది. దీంట్లో మీకు నార్త్ ఇండియా నుంచి సౌత్ ఇండియా వరకు అన్ని రకాల సిల్క్స్ ఉంటాయి, కాటన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో స్పెషల్లీ మీకు కాటన్స్లలో లెనిన్స్, తర్వాత సిల్క్లలో భాగల్పూర్, చందేరి రకరకాలు ఉంటాయి. అట్లాగే మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కలంకారీ, కుప్పడం వెరైటీస్ ఉంటాయి. బూటిక్ కలెక్షన్స్లలో కూడా మీకు టాప్స్ వెరైటీస్ చాలా రకాలు ఉన్నాయి. మీరు వెనకాల చూస్తున్నట్టు ఇట్స్ ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ బూటిక్ కలెక్షన్స్. దీంట్లో మనకు 400 రూపాయల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మంచి డిస్కౌంట్స్ ఉంటాయి. ఆషాఢం కాబట్టి మీరు తప్పకుండా వచ్చేసి ఒకసారి చూడండి. డెఫినెట్లీ యూ లైక్ దిస్ ఎగ్జిబిషన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ 26 జూలై నుంచి 4 ఆగస్ట్ వరకు ఉంటుంది. తప్పకుండా రండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. रियासत तेलंगाना की हज कमेटी की जानिब से रवाना होने वाले आज़मीन हज का पहला काफिला 767 अफराद पर मुश्तमिल आज बाद नमाज जुमा दोपहर 2:30 पर हज हाउस नामपल्ली से एयर कंडीशन बसों के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए रवाना हो गया। मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद महमूद अली वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना हज हाउस नामपल्ली से सब्ज झंडी दिखाकर आज़मीन हज के पहले काफिले को रवाना किए। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, के ईश्वर वज़ीर अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना, टी श्रीनिवास यादव वज़ीर हैवानात हुकूमत तेलंगाना, AK खान IPS रिटायर्ड मुशीर महकूम अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना, B शफ़ीउल्लाह IFS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, बाबा फसीउद्दीन डिप्टी मेयर हैदराबाद। इनके अलावा अराकीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के साथ साथ इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी भी वहां पर मौजूद थे। जो इरादा करते हैं हज को जाने का और हज को जाने वाले तमाम हाजी हजरात से मैं यही गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ताला जब आपको मौका दिया है तो हज के टाइम पर बहुत सब्र की ज़रूरत होती है। हज के फ़राइज़ जो अदा किए जाते हैं, बहुत अहम फ़राइज़ अदा किए जाते हैं, उसमें हमें सब्र से, इस्तेमाल से इबादतें करना चाहिए। और तेलंगाना हुकूमत शायद हिंदुस्तान में नंबर 1 हुकूमत है जो हाजियों के इंतजाम करती है। मैं खास तौर से हमारे हज कमेटी चेयरमैन मसीहुल्लाह खान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जब से वो चेयरमैन बने मुसलसल हज के इंतजाम दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हैं। और हमारे मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो पूरे हज के इंतजाम को कवर कर लोगों तक पेश करते हैं। हाजी हजरात जो हज को जाते हैं यकीनन वो खुश नसीब है। मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ, जब आप हज को जाएंगे, जब काबे पे और मदीना शरीफ पर आपकी नजर पड़ेगी तो सबसे पहले आपके लिए दिल भरकर दुआ कीजिए, आपके खानदान वालों के लिए दुआ कीजिए। और उसके बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब जो बहुत सेकुलर सीएम है, हिंदुस्तान में कोई सीएम है तो केसीआर साहब है, जो सारे लोगों को एक ही नजर प्रोग्राम तेलंगाण राष्ट्र प्रभुत्व మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ హజ్ యాత్రికుల కోసం పూర్తి స్థాయిలో అన్ని విధాల ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా మరి వాళ్ళ యొక్క ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చూడడం కోసం
మరి మంత్రిత్వ శాఖతో పాటు పెద్దలు మహమూద్ అలీ గారితో పాటు వీరికి సంబంధించినటువంటి శాఖ అధిపతులైనటువంటి అధికారులందరూ కూడా నిమగ్నమై ఈ కార్యక్రమంలో ఎటువంటి అవాంతరాలు జరగకుండా అన్ని మరి సవ్యంగా జరగడం కోసం పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అంతేకాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ముస్లిం మైనార్టీ సోదరుల యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులను మెరుగుపరచడం కోసం ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా అనేక సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టినటువంటి విషయం మా ముస్లిం సోదరులకు అందరూ కూడా తెలుసు. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి भरपूर चीज की नुमाइंदगी करने में हमारे महमूद अली साहब और हमारे कोपरेश्वर साहब मिनिस्टर साहब हमेशा आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीज हर चीज कोई चीज में कमी नहीं होने की चेयरमैन जलसे के सदर मसीउल्लाह साहब और हुकूमत खिजला पे जब गिरी गिरेगी तो आपसे मेरी यही गुजारिश रहेगी, वक्त की तंगी को देखते हुए यही आपसे मेरी गुजारिश रहेगी, पहली निगाह में आप मेरे हक में और आप हुकूमत तेलंगाना के हक में और बिलखुसूस हिंदुस्तान के हक में, मुल्क हिंदुस्तान के हक में और बिलखुसूस पूरे दुनिया में मुसलमानों की आज अमन के लिए और पूरे दुनिया में अमन कायम रहने के लिए, बिलखुसूस हैदराबाद और तेलंगाना में अमन कायम रहने के लिए पहली दुआ आप करने की आपसे मेरी गुजारिश करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े बुजुर्गों फरमाते हैं और उलमाए दीन फरमाते हैं जो खाने काबा पे पहली निगाह पे जो दुआ मांगी जाती है इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होती है। तो आज हिंदुस्तान की हालत देखते हुए इस नाजुक की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 hours digital X-ray, ultrasound, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. राज्यसभा के जारी अजलास में 7 अगस्त तक तोसी दे दी गई है। सदनशीन राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने ऐवान को ये बात बताई और कहा कि बाज़ अहम बिल्स की मंजूरी के लिए इजलास को जो आज ख़त्म होने वाला था 7 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि तोसीशुदा इजलास के दौरान वक्फे सवालात को मुलतवी कर दिया गया है। ममलकती वज़ीर पार्लिमानी उमूर वी मुरलीधरन ने बताया कि राज्यसभा में 3 तलाक के बशमूल कई अहम क़वानीन को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। TMC के लीडर डेरेक ओब्रायन ने तजवीज़ पेश की कि वक्फे सवालात को चूँकि मुलतवी कर दिया गया है, वक्फे सिफर को 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया जाए ताकि अरकान कई अहम उमूर पर अपनी राय रख सकें। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान ने मीडिया को मुस्तकम और आज़ाद बनाने से मुतालिक मौजू पर एक मुख्तसर मुबाहिस के लिए नोटिस दी है, जिस पर नायडू ने बताया कि वो इस पर गौर करेंगे। That as requested by the government, the Business Advisory Committee in its meeting held on 26th of July 2019 was informed that the sittings of the Rajya Sabha, which were earlier scheduled up to Friday 26th of July 2019, has been extended up to Wednesday 7th of August 2019 to transact essential government legislative business. There will be no question hour on those days. The Business Advisory Committee has taken note of that. लोकसभा में आज खातून अरकान ने बिहार की MP रमा देवी के बारे में समाजवादी पार्टी के रुकन आजम खान के रिमार्क की मजम्मत की और उनसे माजरत खाई का मुतालबा किया। वक्फे सवालत के दौरान ये मसला उठाते हुए वज़ीर टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने कहा कि तलाक मसले पर बहस के दौरान आजम खान के रिमार्क से सारा ऐवान शर्मशार हुआ है। स्मृति ईरानी की तायद करते हुए मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि
आजम खान को या तो माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर उन्हें ऐवान से मुअत्तल कर दिया जाए। आपकी अनुमति से मैं ये कहना चाहती हूँ महोदय, मेरे 7 वर्ष के संसदीय कार्यकाल में आज तक किसी पुरुष ने इस प्रकार की किसी भी सदन में हिमाकत नहीं की। ये विषय महिला का नहीं है। इस सदन में और दूसरे सदन में भी कई पुरुषों ने अपने राजनीतिक सामाजिक कार्यकाल में महिला के संरक्षण के लिए, सम्मान के लिए आवाज उठाई है। लेट अस नॉट रिड्यूस इट टू अ विमेन्स प्रॉब्लम। This is a blot on all legislators, including men, sir. Yes. This is not a house where men come in ताकि किसी औरत की आंखों में झांका जाए. And what was repugnant was that our leader stood in solidarity with the left. My appeal to you, sir, irrespective of our political differences, the entire nation watched yesterday कैसे ये सदन शर्मसार हुआ। इस सदन में बातचीत प्रिविलेज होती है। अगर महिला के साथ इस प्रकार की बदतमीजी सदन के बाहर होती तो वो पुलिस का संरक्षण मांगती और उसे मिलता। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का बिल इसी सदन ने पास किया और हम चुपचाप बैठकर महोदय मूकदर्शक नहीं बन सकते। मंत्री के नाते नहीं, महिला सांसद के नाते नहीं, आज सांसद के नाते पूरे सदन को मेरी अपील है, ये मैसेज भेजें कि महिला चाहे किसी भी पक्ष की हो, इस सदन का प्रिविलेज मिसयूज नहीं होगा एक महिला का अपमान करने के लिए। महोदय, बाहर पुलिस का संरक्षण है, यहाँ आपका है। मैं अपील करूंगी कि सदन में पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़ के, जेंडर डिफरेंसेस छोड़ के हम एक स्वर में बोले, यू कैन नॉट मिसबिहेव विद अ वुमन एंड गेट अवे विद इट बट जस्ट ड्रामेटाइजिंग इट एंड से मैं रिजाइन कर दूंगा, या आपको गलतफहमी हुई है। बीजेपी के कायद BS येदियुरप्पा आज शाम कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगे। राजभवन में ये तकरीब शाम 6:15 बजे होगी। कबल से येदियुरप्पा ने गवर्नर वजुभाई वाला से मुलाकात करके तश्कील हुकूमत का दावा पेश किया था। उन्होंने बताया कि 225 रुकनी असम्बली में उन्हें 105 अरकान की तायद हासिल है और उनकी पार्टी को अक्सरती पार्टी का दर्जा हासिल है। येदियुरप्पा ने मीडिया को बताया कि उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी और कांग्रेस मखनना पार्टी के लीडर सिद्धरामैया को तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत दी है। वाज़ेह है कि येदियुरप्पा रियासत के 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। गुज़िश्ता साल मई में भी वो अपनी अक्सरियत साबित करने से पहले ही ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए थे। I met governor to form the government and take oath as Chief Minister of Karnataka, and he has given a letter. He has agreed. Today by 6 to 6:15, I am going to take oath as Chief Minister of Karnataka. For that, governor also agreed. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कारगिल जंग के 20 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में फौजी शहीदों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत अदा किया गया।
आज का दिन विजय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वज़ीर नरेंद्र मोदी ने अपने अपने ट्वीट में हिंदुस्तानी फौज के जवानों की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें पुरस्कार खराज पेश किया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भी इजलास के आगाज पर शहीदों की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और तीनों मुसल्ह अफवाज के सरबराहों ने इंडिया गेट पर फूल चढ़ाए और दुश्मन फौज के दांत खट्टे कर देने वाले हिंदुस्तानी सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि 1999 में कारगिल जंग में हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी जारहियत को पसपा कर दिया था। Honorable members, today is the 20th anniversary of the Kargil Divas. On the 26th of July 1999, our valiant and fearless soldiers boosted enemy forces from the occupied territory and reclaimed the Kargil heights, resulting in the momentous victory of our country. The display of dauntless courage and gallantry by our soldiers against all odds will always be remembered. Today, on behalf of the whole House and on my own behalf, I pay glowing tribute to the indomitable spirit and supreme sacrifice of our brave soldiers who went above and beyond their call of duty to protect our motherland and secure our lives. I request the members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of all those brave soldiers who laid down their lives in the defense of our country. Om Shanti Shanti Shanti. आंध्र प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश की हुकूमत भी मकामी लोगों को मुलाजमतें फराहम करने कोटा सिस्टम शुरू करने का मंसूबा रखती है। चीफ मिनिस्टर कमलनाथ का एहसास है कि बिहार और यूपी के बाशिंदे रियासत के नौजवानों से रोजगार छीन रहे। चुनाचे खानगी कंपनियों को 70% मुलाजमतें मकामी लोगों को देने के लिए एक कानून बनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर कमलनाथ खुद जो कि एक सनतकार हैं, अपनी रियासत के सुपूत नौजवानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। 9 जुलाई को असम्बली में एक बयान देते हुए उन्होंने अपने इस अज़म का भी इज़हार किया था और कहा कि मकामी अवाम को खानगी शोबे में मुलाजमत की फराहमी को यकीनी बनाना उनका आइन मकसद है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि दिसंबर 2018 के असम्बली चुनाव में कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में मकामी नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया था। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने भी खानगी शोबे में 75% मुलाजमतें मकामी नौजवानों को फराहम करने की बात की है। बीजेपी के रुकन असम्बली जे.एस. पाटिल ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों के सबब ओबीसी तबका हनुस पसमानदा है। अपोजिशन लीडर गोपाल भार्गवा ने ओबीसी कोटे के लिए क्रीमी लायर शुरू करने की तजवीज़ पेश की ताकि तहफ़्फ़ुज़ात का फ़ायदा सिर्फ उनको मिले जो तहफ़्फ़ुज़ात के हकदार हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत।
गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। जंग के लिए आमादा जनूबी कोरिया की फौज को इंतबाह देते हुए शुमाली कोरिया ने आज एक नए मिसाइल को लॉन्च किया है। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग इन मिसाइल लॉन्च करने के मौके पर बनफ्स नफीस मौजूद थे और उन्होंने इस कार्रवाई का मुशाहिदा किया। गुज़िश्ता माह किम और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुई बातचीत के बाद शुमाली कोरिया ने यह पहला मिसाइल का तजुर्बा किया है। 55 साल के वक्फे के बाद पाकिस्तान डेविस कैंप के लिए हिंदुस्तानी टीम की मेजबानी करेगा। पाकिस्तानी टेनिस फेडरेशन के नायब सदर मोहम्मद खालिद रहमानी ने मीडिया को बताया कि इस साल सितंबर में होने वाले इन मुकाबलों के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी टीम ने आखिरी मरतबा 1964 में पाकिस्तान का दौरा किया था और मेज़बान मुल्क को 4-0 के फ़र्क से हरा दिया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।